Good morning, Radiant, class 11th. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 4, process and base of accounting. This chapter is very important to better understanding for the accounting process. Actually, student, last chapter was accounting principles and I hope कि आपने उसको learn किया होगा. That was very important about the principles, rules and regulation for the accounting procedure. Today we are discussing process and base of accounting. So the chapter is categorized into two parts. First is process and second is base of accounting. The first is process of accounting, next is base of accounting. You know students, when I am talking about when I am talking about any process, so process will be some steps, step 1, step 2, step 3, step 4 and you know students कि when we purchase any raw material to finish goods, तो हमने उसको raw material purchase किया, फिर धीरे धीरे मशीनी प्रोडक्शन होते समय लास्ट में लेबलिंग पैकेजिंग होने के बाद तब वो फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है, तब वो दैट गुड्स आर एबल टू सेल. Now same as in accounting, process means what if anyone asks to you what is process of accounting, then you will tell process of accounting includes identification of transaction and followed by the preparation, recording, posting and preparation of the trial balance. Means process एक लंबा process है. ये कैसा process है? तो process में आप बोलेंगे कि process of accounting means it is start from identification of transaction and it will be continue to recording, posting and till now preparation of the final statement, ठीक है. So it is start from identification of transaction to the till the financial statement या preparation of financial statement. And in these segment, in these statements you have to study about the identification of transaction, preparation of voucher, recording in the books of original entry, posting into ledger and last final output that will be called profit and loss या financial statement or you can say trial balance. So students, okay, some points you already know. First of all, about the identification of transaction. When you are going to start any business, suppose that कि किसी चीज़ का business कर रहे हो, तो students ऐसा नहीं है कि जो है you are able to record all the transaction in the books of account, ठीक है. I already told you about the some concepts, some conventions of the in the last chapter, in the last video. So there are a convention of full disclosure and there are convention of materiality. एंड कंसेप्ट ऑफ द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है. तो वहाँ चीज़ें कनेक्ट की गई थी कि हम जो है ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. तो उसी को आप रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? In the identification of transaction, first of all, businessmen have to identify what transaction are recorded in the books of account, या what transaction will be recorded in the books of account and what will not, ठीक है. How will you consider, how will you identify, ठीक है. कोई पैमाना है आपके पास, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? Actually the transaction which are you going to record, जिसको आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज ट्रांजेक्शन विच आर डायरेक्टली रिलेट टू द बिजनेस, ठीक है. देयर आर नॉट एनी पर्सनल जजमेंट, नहीं होना चाहिए आपको कोई पर्सनल उसमें जो बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है. So identification of transaction, only those transaction will be recorded in the books of account which can be expressed या which can be measured in terms of money. Only monetary nature transaction will be recorded in the books of account. So in the business there are various transaction can be available, ठीक है. दिन भर चाय पानी नाश्ता सब कुछ लगा रहता है. किसी ने फ़ोन करके कोई ऑर्डर दिया, ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी ने फ़ोन किया भैया जो है 10 लाख का सामान मुझे दे दीजिए और 10 लाख का सामान आपने फ़ोन से बात किया और तुरंत उसको सेल बना दिया. तो ऑर्डर करने से जी सेल थोड़ी हो जाएगा. किसी ने आपको फ़ोन किया कि भैया मेरा जो है इतना का सामान भेज दीजिए, इतने का सामान भेज दीजिए. तो सिर्फ फ़ोन करने से या किसी के कह देने से आप ट्रांजेक्शन थोड़ी बना देंगे उसको. ट्रांजेक्शन या सेल कब माना जाता है? व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू अनदर पार्टी, तभी वो सेल माना जाता है. किसी के फ़ोन कर देने से सेल नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही झंझट है, यही परेशानी है कि जब आप बिजनेसमैन एज अ ओनर किसी चीज़ को डील करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, दो पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे. द ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर, विल बी मेजर, विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट ट्रांजेक्शन विल बी इन मॉनेटरी फॉर्म, रुपए के फॉर्म में या रुपए के फॉर्म में वो होना चाहिए. एंड दैट ट्रांजेक्शन इज डायरेक्टली रिलेट टू द पर्टिकुलर बिजनेस. ऐसा नहीं किसी दूसरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर देंगे. तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको ट्रांजेक्शन को कि मेरा ही ट्रांजेक्शन है, मेरे बिजनेस को रिलेट करना पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, वो ट्रांजेक्शन क्या मनी में एक्सप्रेस्ड है, मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है. अगर हाँ तो आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है.
इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन यू है कि हाँ चलिए ठीक रिकॉर्ड किया जाए, तो फर्स्टली यू हैव टू नोट दैट ट्रांजेक्शन इन द वाउचर. तो यू हैव टू प्रिपेयर वाउचर. एक्चुअली आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द वाउचर. व्हाट इज वाउचर? हु कैन एक्सप्लेन? Student, voucher is a place where the transaction are firstly recorded. That is not the recording of the transaction. That is only identify. You need not to write anything. Just you have to think about the transaction कि रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा. जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, तो यू हैव टू प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. व्हाट वाउचर? कैश वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न वाउचर. वाउचर का मतलब अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो बेटा आपने बिल देखी किसी चीज़ की जहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है. वाउचर भी कह सकते हैं इसको, या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट. क्या बोल रहा हूं मैं? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट. देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको रिकॉर्ड करें. अगर आप सेल कर रहे हो बेटा तो सेल का वाउचर आपने पास रखा होगा. सेल किया, सेल वाली ऐसे ही कॉपी बनवा रखी, गड्डी गड्डी सब बनवा रखा है, सब निकाल लिया. कैश में किसी को पेमेंट किया तो कैश वाला निकाल लिया. वाउचर है ना, बिल जैसा कुछ. तो उस पर आपने तुरंत फटाफट साइन करके जो है दे दिया, ठीक है. तो स्टूडेंट्स फटाफट करने के बाद आपने क्या किया? वाउचर बना दिया. अब प्रॉब्लम यह है कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है. देखो कभी कभी हम खुद से वाउचर बनाए रहते हैं तो ठीक है. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जैसे सपोज कि किसी से आप परचेज किया, तो परचेज करने के बाद वहाँ से आपको बिल मिलेगी, तो वो बिल भी आपकी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है. जरूरी नहीं कि आप परचेज वाउचर ही बनाएं. आप अपने जो आप सामान को परचेज करते हैं उसके लिए अलग से बिलिंग कर लीजिए, बिल बना लीजिए. उस बिलिंग में जो है चीज़ों को लगाते रहिए, तो वो भी आपका जो है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का काम करेगा, ठीक है. और वाउचर को मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि वाउचर इज अ प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड. नेक्स्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. नाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड. अब आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और यहीं से आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन इन द वाउचर, दैट इज द वेरी जनरल फॉर्म. नाउ यू हैव टू रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट यू हैव टू स्पेशल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी. जब तक आपको नॉलेज नहीं तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे. सो रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स when the transaction are firstly recorded by voucher or by the source of document. मैंने बोला कि वाउचर का काम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकता है. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि आप जो है वाउचर ही बनाएं, ठीक है. वाउचर दैट इज क्रिएटेड बाय यू एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट सपोज दैट कि अगर आपको परचेज करने के बाद जो बिल मिलती है, कोई सामान परचेज करने में जो आपको बिल मिलती है, तो उस बिल को आप सीधे फाइल में नथी कर लीजिए. क्या जरूरी है क्या वाउचर बनाने का, ठीक है. तो वाउचर रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन व्हेन द ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड बाय द वाउचर और बाय द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है. एंड इन फॉर्म ऑफ दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड जर्नल. जब आप इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो इसे बोला जाएगा जर्नल. और यहीं से एंट्री जब आप करेंगे जिसको बोला जाएगा जर्नल एंट्री, ठीक है. अब यहीं से आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट होती है एंड दैट जर्नल एंट्री विल बी इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है. यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अकाउंट, अबाउट द स्पेसिफिक रूल, गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अकाउंटेंसी. देन you will convert the transaction, you will write the transaction in form of debit and credit. When you are going to record the transaction in form of debit and credit, that is called recording the books, recording in books of original entry. Original entry का मतलब अब आपने पहली एंट्री ओरिजिनल एंट्री स्टार्ट की. जब भी एंट्री की बात करेगा आप सोचेंगे जनरल एंट्री की बात कर रहा है वो, ठीक है. एट जनरल एंट्री मीन्स इफ द ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर ट्रांजेक्शन आपका डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट हो चुका है तो वो जनरल एंट्री बोली जाएगी. तो रिकॉर्डिंग करेंगे. रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी बेटा? रिकॉर्डिंग आपकी होगी वाउचर से, ठीक है. वाउचर या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर. अब आपको पता चल गया कि सर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो सेल किया, चाहे वो परचेज किया, चाहे वो सेल किया, चाहे वो परचेज किया, चाहे परचेज रिटर्न किया, चाहे आपने सेल रिटर्न किया, चाहे पेमेंट किया, चाहे आपने एक्सपेंस पे किया, या चाहे आपने इनकम कोई रिसीव की. सो ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द ओरिजिनल एंट्री इन फॉर्म ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो जर्नल एंट्री जो होती है वो एक बुक जैसा काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा पेज होता है, काफ़ी मोटी किताब जैसी होती है. उसी में हम डेली जो है लिखते जाते हैं. जर्नल एंट्री का मतलब ये होता है दैनिक दिनचर्या जो होती है, जो आप दिन भर में ट्रांजेक्शन करते हैं उसको किस फॉर्म में सेट कर देते हैं? डेबिट क्रेडिट फॉर्म में. तो अगर यहाँ पे सब कुछ हम लिख देंगे ऐसे 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 डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेली वाइज ट्रांजेक्शन, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे हैं एंड योर बुक्स बिकम वेरी बल्की, काफ़ी हैवी बुक हो जाएगी ये. तो आप क्या करते हैं,
जैसे सपोज कर लीजिए कि जब आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो आपने कबाड़े वाली दुकान देखी होगी, वहाँ पे क्या होता है कि जब हम कबाड़े को परचेज करता है तो सबको एक साथ जो है परचेज कर लेता है, लेकिन लास्ट में क्या करना होता है, उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब सेम नेचर ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच हैविंग सेम नेचर, सेम, उसको क्या करता है, एक प्लेस पे कर देता है। वैसे कबाड़ी वाला भी वही काम करता है, जो सेम नेचर हो, जैसे लोहे को अलग कर देता है, प्लास्टिक को अलग कर देता है, सीसी को अलग कर देता है, सेम वहाँ भी करना है कि जैसे आपने पूरी एंट्री रिकॉर्ड की, इसमें से परचेज वाला एक जगह पे, सेल वाला एक जगह पे, इसके बाद मोहन से जो रिलेट है तो मोहन वाला एक जगह पे, सोहन से रिलेट कर रहा तो सोहन वाला एक जगह पे, कैश की बात कर रहा तो कैश वाला एक जगह पे। तो हम क्या करते हैं, उसका सेपरेट हेड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सेपरेट हेड्स। ठीक है, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन we have to classify the transaction into their separate heads and that transaction will be same nature transaction same place। ठीक है, परचेज जितनी बार आएगा एक जगह पे जाएगा, सेल जितनी बार आएगा एक जगह पे जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यह है कि इफ द ओनर वांट टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट सेल ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ, एक महीने में, जुलाई के महीने में कितना सेल किया आपने, तो कैसे आप बता पाओगे? आप इसको खोलोगे, एक जुलाई में कितना होता है पता है? जुलाई 31 डेज की होती है और 31 डेज में पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है अभी पेज पलटते समय कहीं आप भूल गए, तो आप पहले ही क्या करते हो, उसको कैटेगराइज कर देते हो, एक नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। तो अब जब आप जो है चीज़ों को बना चुके हैं, जब आपने जो है सेपरेट हेड में ट्रांसफर कर दिया है, तो हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। जब बेटा ट्रायल बैलेंस की बात होती है तो ट्रायल बैलेंस का काम होता है ये डेबिट और क्रेडिट एक यहाँ पे रखता है। चूंकि ओरिजिनल एंट्री जब हम पास करते हैं तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हमें क्या, इस कंडीशन हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग डुअल इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप डेबिट क्रेडिट में हमेशा बराबर कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस बना करके चेक कर लेते हैं क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर है तो मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, जो लेजर में ट्रांसफर किया है, सब क्या है, सही है। तो ये ऐसा नहीं है साहब आगे चैप्टर, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर, सब आगे चैप्टर है, यहीं तक आपको पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है 11th में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो प्रोसेस देख लीजिए। आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस बिजनेसमैन वांट टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब सब कुछ हो गया तो क्या मतलब निकला, पहले हमें ये तो बताओ प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। सो आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, आफ्टर मेकिंग ऑल द रिकॉर्डिंग, businessmen want to know that what is the exact profit of the business and that profit may be identified by preparing profit and loss account। तो यहाँ पे जो लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। So to ascertaining the net result of the business, businessmen are going to prepare profit and loss account, and the profit and loss account will be prepared by the businessman by trial balance। trial balance से जो क्या बना लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता है, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो द एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने, कितना लंबा प्रोसेस है ना, कितना अच्छे से आपको करना है, मजा आएगा, टेंशन ना लीजिए। और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज़ें होती है, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, दूसरा पोजिशनल स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट आपकी इनकम कैपेसिटी जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल में जो है एक होता है पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट क्या करता है, ये आपकी पोजीशन को बताता है कि व्हाट्स आवर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अदर, व्हाट्स आवर लाइबिलिटीज एंड व्हाट्स आवर असेट्स। टू असर्टेन द लाइबिलिटीज एंड असेट्स बिजनेसमैन आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेगा और क्या बना लेगा, बैलेंस शीट बना लेगा। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ, समझ गए ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Process of accounting, identification of transaction, preparation of voucher, recording of books of original entry, posting into ledger, and last prepare financial statement. Okay, okay students, so that's enough for today. Thank you.